मैं कहता हूँ कि मैंने जब सोचा मुझे एंकरिंग करनी है, मैं तब से एंकर बन गया। सिंपल। आई स्टार्टेड कॉलिंग माई सेल्फ एज एन एंकर। सो इफ यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर एन आर्टिस्ट। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप फिर भी गिटार आपका पैशन है, तो आप एक आर्टिस्ट हो। यू आर एन आर्टिस्ट फ्रॉम द डे यू थिंक यू आर एन आर्टिस्ट। सो इट्स वेरी सिंपल। द मोमेंट दैट थॉट कम्स इन योर ब्रेन कि मुझे ये करना है, आई थिंक दिस इज व्हाट आई एम लाइकिंग इट, ये मेरा पैशन हो सकता है, ये मेरा करियर हो सकता है, उस पर काम करना शुरू कर दो। एक दिन आएगा जब आपको लगेगा कि अब मैंने इतना तो काम कर लिया है कि मैं इसको फुल टाइम कर सकता हूँ, मैं इसमें कुछ बड़ा कर सकता हूँ, आई कैन ग्रो इन दिस। तब सब कुछ छोड़ दो पीछे, उस पर लग जाओ। No Talkers, a show featuring stories not from the talkers but from the action takers. This is episode number 2. Your host Divyesh, and today I am speaking with Mr. Pankhil Dholakia. अरे ये बंदा जीता ही है लोगों का दिल जीतने के लिए। कोई भी मैरिज फंक्शन हो, कॉर्पोरेट इवेंट हो, anything, he will just come on the stage and he will rock the stage. He will make every moment very special. Welcome Pankhil Dholakia to this show. By the way, Pankhil Dholakia is chartered accountant by profession. When he is not anchoring, he is running Coco on Wheels, a desert outlet which is in Mumbai. Just stay tuned. 24th December 2022. I cannot forget that day. I still remember that Haldi, Mehndi, Sangeet, that function. And then suddenly a guy comes with his troupe with banging, dhol, tasha, nagara, with full-on Punjabi tadka. And that's where this guy rocks the stage. Welcome to the show, Pankhil. Thank you, Divesh. Thank you so much. I'm absolutely elated and excited to be here. Fantastic. So Pankhil, कैसे कर लेते हो ये सब? मुझे तो सिर्फ 3 चीज पता है. Feel free to add if you're doing anything else as well. The source is one simple motivation that drives me, is to do something new and give something new always to the people whom I work for. So be it my customers when I'm at Coco on Wheels, or be it my client when I'm hosting a show, or be it anybody whom I'm talking to or connecting with, to give the best possible outcome whatever I do. That drives me. As you correctly said, after being a chartered accountant, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि एक CA जो है वो अपने प्रोफेशन को छोड़ के कुछ भी करता है तो he'll attain more success as compared to what he is doing after becoming a CA. What I believe. Okay. No doubt, the profession has taught me too many things, and because of that, I am able to do a little bit of what I am doing right now. Fantastic. I would like to go into CA journey, but before I go there, if I bring you to this present moment where जहाँ पे आप स्टेज को फाड़ देते हो, जो नहीं नाचता है ना वो भी नाचने लगता है. This is my own personal experience. So ये सब माल सामान या रो मटेरियल कहाँ से लाते हो? कहाँ से ये स्क्रिप्ट कहाँ से आती है? It's basically observing. आज शादी एक इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है लाइफ में, और वो उस चीज़ को लेके अगर आप पे ट्रस्ट कर रहा है, सो ही फील्स यू इक्वली इम्पोर्टेंट. सो इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई जॉब टू मेक श्योर कि वो इवेंट बहुत ही खास हो मेरे क्लाइंट्स के लिए, जो कि फैमिली बन जाते हैं इवेंचुअली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो उनके लिए वो बहुत ही खास हो, बहुत ही यादगार हो, and people go back taking a lot of memories and being very happy. And talking about the content part, yes, content तो observe करता हूँ मैं लोगों को whenever I'm around. Basic चीज़ें जो होती है weddings में, या basic चीज़ें जो होती है couples के बीच, in fact be it my parents, be it my grandparents, मेरे friends, colleagues, उनको ऑब्जर्व करके कुछ ना कुछ मीठी बातें आ जाती है. अब तो वो करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स बीन 2 months दैट आई एम मैरिड, तो मुझे घर पे ही कंटेंट मिल जाता है बहुत सारा, बाहर जाना ही नहीं पड़ता. पहले से एंकरिंग में ही थे या क्या बचपन में जब बच्चा होता है वो कहता है या मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, जो कैसे आप एंकरिंग में आए बेसिकली ये फील्ड में? स्टोरी इज वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग नहीं है, कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, बट हाँ इसमें उतार चढ़ाव तो है काफ़ी, क्योंकि बचपन में मेरा ऐसा कुछ था नहीं मैं ये बनूंगा वो बनूंगा. मेरा सिंपल था जो पापा कहेंगे वो मैं बनूंगा. तो इट वाज लाइक दैट. एंड आफ्टर माय 10th एग्जाम्स पापा ने कहा कॉमर्स इज अ गुड फील्ड, आई फील फॉर यू, आपको चले जाना चाहिए.
तो कॉमर्स में चला गया। 11th-12th करने के बाद पापा ने कहा आई गेस, पहले मुझे पूछा तुझे क्या करना है, मैं तो लाइक कुछ नहीं पता नहीं मुझे क्या करना है, आप बताओ कर लेंगे हम। तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो सीए करना चाहिए, तो हम जुड़ गए सीए की लाइन में, एडमिशन ले लिया, क्लासेस एंट्रेंस एग्जाम दे दी, सीए इंटर एग्जाम दे दी, पहले अटेम्प्ट में पास हो गए। तो मैंने कहा फिर यही है भाई, लाइफ में लिखा है पास भी हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है तो। बट देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द रियलिटी हिट मी एंड IPCC ग्रुप 2 एग्जाम्स तब चल रही थी, इंटरमीडिएट एग्जाम्स होती है IPCC की, सीए की। ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पास करने होते हैं, वहाँ पर आई स्टार्टेड फेलिंग एक अटेम्प्ट। सीए में कैसा होता है, फॉर द लाइक लिसनर्स हु डोंट नो, एवरी 6 months देयर इज एन एग्जाम। तो आई स्टार्टेड फेलिंग, एक अटेम्प्ट फेल हुआ, दूसरा अटेम्प्ट फेल हुआ, तीसरा अटेम्प्ट फेल हुआ, तब तक यूजुअली लोग गिव अप कर देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अब तो नहीं हो रहा है, तो व्हाट अदर थिंग्स आई कैन डू अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो चल रहा है, दिस इज वेयर आई एम स्ट्रगलिंग, बट व्हाट अदर थिंग्स आई कैन डू दैट आई लाइक, मे बी शायद तब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा था यहाँ। So then I went on to do theatre. I was very much inclined towards movies. I was very much inclined, जैसे कि हर बच्चा होता है, बड़े होकर एक्टर बनना है, एक्टिंग करनी है। तो चले गए हम वहाँ पर गए तो थिएटर 2 साल किया, 12-12 घंटे घिसवाता था, वापस आके पढ़ाई करो सीए की। बट इवेंचुअली थिएटर से भी बहुत स्ट्रगल था, आई वॉन्टेड टू वर्क स्मार्ट, तो मैंने कहा ये दिस इज नॉट माई थिंग। देन आई वेंट ऑन टू डू एक्टिंग क्लासेस, फिर मैंने एक्टिंग करी, आई वर्क फॉर इन 2-3 सीरियल्स में भी काम किया हमने। दिस इज 2016-17, तो सब ट्राई वाई करके बाहर आ चुका था। फिल्म इंडस्ट्री जितनी बाहर से प्यारी दिखती उतनी है नहीं, तो मैंने कहा दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी। देन आई ऑप्टेड आउट। तब तक पैरेलल आई वाज गिविंग माई एग्जाम्स एवरी 6 months, पढ़ाई करो, 2 महीने की जो भी काम कर रहे हो छुट्टी ले लो, सिर्फ पढ़ाई करो एंड एग्जाम्स दो, जस्ट स्लॉगिंग आउट देयर। तब थोड़ा सा चमका, कॉलेज में 1-2 इवेंट्स मैंने होस्ट किए थे मजाक में, तब मुझे लगा कि यार मे बी आई गेस आई शुड डू दिस। किससे पूछूं, किससे एडवाइस लूं, किससे गाइडेंस लूं। देन आई फाउंड माई रिलेटिव, डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज नाउ वेरी क्लोज टू मी, हु इज माई मेंटोर, मिस्टर कुणाल बुच। उनसे मैंने बात की, ही वाज द फर्स्ट वन टू टेल मी बॉस जो करना है कर, एंकरिंग करनी है, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ। तो आई वाज वेरी शाय, बट आई स्टिल रिमेंबर इट वाज माई बर्थडे 28th of November, जब मैंने अपने लाइफ का पहला शो किया था। ही गेव मी द माइक, मैं बैक स्टेज था, उनको असिस्ट कर रहा था, आई वाज एज एन असिस्टेंट। बोला जाके बोल, मेरे पैर कांपने लगे, बोला क्या ऐसे बोल, कैसे सीधा बोल, जा ये ले माइक और जाके बोल। एंड चर्च गेट के MCA में शो था, एंड तब मैंने पहला गिग, आई हैड टू इंट्रोड्यूस हिम। मैंने गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस संगीत, ऐसा बात करके बोला था अपनी शेकी आवाज में। एंड that was the first time I held mic and I spoke in public, and after that there was no looking back. He gave me a lot of guidance, and stage पे presentation से लेके it's not only about talking but it's about presenting yourself as a whole person, because यहाँ पर मैं ही product हूँ, I'm selling myself technically. After 5.5 years, 11 attempts which I did not give up, 12वें attempt में जाके मैं पास हुआ। But then तब तक मुझे realize हो गया था कि this is not where I want to be of my life। तब मैंने कहा कि आई गेस एंकरिंग इज व्हाट इट इज। तो तब से इट्स बीन 6 years एंड टचवुड आई एम लविंग माई प्रोफेशन, आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग। एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, एवरी डे यू गेट टू मीट hundreds ऑफ न्यू पीपल। कोई नया इवेंट में, कोई हल्दी में कोई सीन हो गया, कोई फैमिली का कुछ स्टोरी है, लॉट ऑफ लव स्टोरीज जो मैं देखता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, मेरे जो कपल्स जो शादी करते हैं, इट्स एब्सोल्युटली थ्रिलिंग। देवेश, आपने जब बोला you were featured in serials as well, so can you just tell, I mean, serial names and what was the character? Yeah, sure. जब मुझे फोन आया कि आपका सीरियल में शूट हो रहा है कल, तो मेरा 10 किलो वजन ऐसे ही बढ़ गया था। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं टीवी पे आने वाला हूँ, सीरियल पे आने वाला हूँ, शिट क्रेजी। पूरे खानदान को बता दिया था मैंने कि मैं कल शूट पे जा रहा हूँ, देखो मैं शूट पे जा रहा हूँ, मेरा सीरियल में आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर। फुल प्राउड होके खुशी हम चले गए कमलिस्तान स्टूडियो गोरेगांव, एंड वी वर शूटिंग फॉर दिया और बाती हम सीरियल स्टार प्लस पे आता। तो दैट वाज डे 1। मैंने कहा गेट पे एंट्री मारते ही देखो आई एम एन एक्टर एंड आई एम शूटिंग फॉर सीरियल। तो तब जाके उसने बोला नाम बताओ, तो उसने लिस्ट में मेरा नाम देखा, पंकज। हाँ ठीक है साइड में आ। कहा ये मैं एक्टर हूँ, सीरियल में एक्टिंग करने आया हूँ, लाइक साइड में आओ, हम पता चलेगा सब। एंड मेरा रोल जो था वो सिर्फ 2 मिनट का था पूरे सीरियल में, एंड फॉर दैट ही मेड मी वेट 12.5 hours, क्योंकि उनका बाकी सारे एक्टर्स का शूटिंग, तब तक हमें हमारी लाइंस कंटिन्यूस रिहर्स करने दी उन्होंने।
और 12 घंटे वेट करने के बाद फाइनली हमारा कॉल टाइम था सुबह 10 बजे का, 8:30 बजे मेरा लाइन आया। तब मुझे कहा गया ये लाइन पढ़ो। मैंने पढ़ी। 10 भी नहीं, हार्डली 3 मिनट का शूट हुआ। उसने बोला थम्स अप। मैंने बोला सर रीटेक, वापस बोलो। नहीं नहीं नहीं, हो गया, जाओ। एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। एट द एंड ऑफ द डे मुझे चेक दिया गया था सर्टेन अमाउंट का। उनका ये लो, ये आपका आज का, आपने यू शॉट फॉर द सीरियल, यू आर पार्ट ऑफ द सीरियल, ये लो घर पे। सो तब मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट हाउ इट लुक्स। जैसे हम सोचते हैं कि सीरियल में काम करना, ऐसे काम करना, वो करना, ये होता है जस्ट फॉर द 1% पीपल हु वर्क। रेस्ट 99% पीपल हु आर इन द फिल्म इंडस्ट्री, दे स्ट्रगल ईच एंड एवरी डे, एंड हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम जो कर पाते हैं, जो सस्टेन कर पाते हैं। हम जैसे लोग, देन आई वाज अ पार्ट ऑफ चिड़ियाघर सीरियल दैट यूज्ड टू कम ऑन सब टीवी। वहाँ पर भी थोड़े छोटे मोटे किरदार किए, बट लाइफ्स नॉट इजी। एंड अगर आप में उतनी पेशेंस है, मेरी तो सारी पेशेंस सीए में खत्म हो गई थी। तो मैंने कहा अब पेशेंस नहीं है मेरे पास, लेट्स डू समथिंग व्हिच इज मोर इंट्रीगिंग, व्हिच इज nice, which suits my type of personality. Eventually this came out, anchoring, फिर हम लग गए काम पर तब से। तो आप एंकरिंग कितने अराउंड, सिंस हाउ मेनी इयर्स यू आर डूइंग दिस एंकरिंग, लाइक 5.5 you are telling or? Yes, so my first show was 2017 28th November। उसके बाद दिसंबर से मैंने 27th 28 29 30 ये 4 दिन मुझे कल्चरल शो मिला था, तब मैंने होस्ट किया था। तब से आई बीन डूइंग, एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद बर्थडे पार्टीज। छोटी छोटी बर्थडे पार्टीज हम करते थे, स्कूल के एनुअल डेज में करता था। एंड फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू वेडिंग्स, फिर कॉर्पोरेट्स आई स्टार्टेड। ऐसा नहीं है, पहले 2-3 शो जब मैंने खुद से स्टैंड अलोन किए थे, मैंने बहुत मेजर फेलियर ऑब्जर्व किया था। आई वुड नॉट वांट टू नेम द कंपनी, बट आई वाज होस्टिंग फॉर अ सर्टेन कंपनी, एंड दिस इज माय फर्स्ट स्टैंड अलोन शो। राइट। मुझे शो के बाद कंपनी के एचआर ने आके बोला था कि आर यू एन एंकर? मैंने कहा यस। प्रोफेशनली एन एंकर? मैंने कहा यस। तो उन्होंने कहा कि आपसे बेटर एंकरिंग हमारे एम्प्लॉयज कर लेते हैं, यू शुड नॉट डू इट। तो दैट वाज, आई वाज टेकन बैक, और दिस आई डोंट नो, आई डिड नॉट स्लीप द होल नाइट। उसके बाद की 2-3 रात नहीं सोया, पता नहीं, बट दैट वाज वन टाइम दैट आई विल नेवर फॉरगेट इन लाइफ। और जब जब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग वेरी गुड, तो मैं वो वाला दिन याद करता हूँ, एंड फिर सोचता हूँ नहीं यार, इम्प्रूवमेंट का और रूम है, और कुछ नया लाते हैं, लेट्स गेट सम न्यू गेम, कोई नया कंटेंट लाते, कोई नया जोक लाते, लेट्स डू समथिंग और द अदर। ऐसा कुछ ना कुछ हाथ पैर मारते रहते जिससे तुम यू कैन इम्प्रूव एवरी डे, एंड देयर इज सो मच टू लर्न आउटसाइड। मैन, दिस इज सो नाइस। तो हर एक हिट शो के बाद आई सी टू इट, आई हैव दैट हैप्पी स्माइल ऑन माई फेस, अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि you've done a good job. Yes, you should celebrate your success, but yes, you should stay grounded also at the same time. When you gave your show on 28 November 2017, you are giving the first show. How that progression happened? I mean, how you kept getting new inquiries, new shows? The field is a lot of uncertainties कि तुम्हें नहीं पता कि you've been hired for the next show, तुम्हारा अगला सीजन, ये वेडिंग जो है वो सीजन के हिसाब से चलता है इंडस्ट्री। सो द पीक सीजन इज राइट फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी एंड देन अप्रैल मई। सीजनल इंडस्ट्री ऐसा लोग कहते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर इवेंट्स थ्रू आउट द ईयर, यू कैन बी बिजी होल द एंटायर 12 months। बट हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं इसको एज अ साइड हसल देखता था। पता नहीं यार मुझे कौन हायर करेगा, कैसे करेंगे, एक इवेंट हो गया, चलो अच्छा, दूसरा हो गया, तीसरा, आगे इवेंट्स मिलेंगे कैसे, हाउ डू आई get more business. So my mentor, Mr. Kunal Butch, he helped me a lot initial years में to give me that confidence. आप कर सकते हो, आप इतना बड़ा इवेंट भी हैंडल अकेले कर सकते हो। So ऐसे धीरे धीरे करते गया एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होते गया। मतलब 2 साल पहले तक की बात है, इट वाज 2000, बीच में कोविड आ गया। कोविड वाज अ वेरी टफ टाइम, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट दैट गेव मी कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू दिस, दिस कैन बी माई करियर, दिस कैन बी माई ब्रेड एंड बटर। तो मैं पूरी तरीके से इस पर डिपेंडेंट हो सकता हूँ। दैट गेव मी कॉन्फिडेंस, एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज फ्रॉम डिफरेंट इवेंट कंपनीज, फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स, वर्ड ऑफ माउथ, एंड यस, कीप बेटरिंग योर सेल्फ। तो मैं अपने आप को बेटर करता हूँ आज भी, आगे भी करता रहूँगा,
एंड आई विल हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि वॉट एवर इट इज, अगला सीजन कैसा जाएगा पता नहीं मुझे, बट आई एम वेरी श्योर ऑफ डूइंग वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ द बेस्ट. तो आगे इट विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इट्स वी आर इन मिड ईयर, हम मई में है, टुडे इज 10th of May. तो आई हैव ऑलरेडी 10 to 15 inquiries of December, January, February 2024. So God will take care of yourself if you take care of yourself. Fantastic. And today when I see different people, this is again my observation. I'm talking about those people who are not enjoying the job basically. Now they might want to try some different stuff. Any specific steps or any specific journey even at high level which you might want to share? In my case, I will tell you, I am a person who is very afraid of change. मुझे बहुत डर लगता है. अगर कोई मुझे कुछ कहे कि आपको ये शुरुआत करना है कुछ नया, मैं डर जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा. I am very resistant to change as a person. I was rather, I'd say. But नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. वो कहते हैं कि अगर इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत पर आन पड़ती है तो बंदा कोई भी हद तक जा सकता है. तो आई वुड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस कि इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, अगर आप कहीं अटके हो, इफ़ यू आर स्टक इन लाइफ एंड डूइंग समथिंग विच यू डोंट लाइक, तो डोंट गिव अप ऑन दैट. But at the same time, look out for other options. मतलब I'll be give you a very practical advice. मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि if you're taking care of your family, आज सब responsibilities है काफ़ी लोगों पे, तो सब छोड़ छाड़ के तुम तुम्हारा पैशन फॉलो करने चले जाओ. ये सुनने में बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, बट जब मैंने स्विच किया अपना करियर A to B, I always made sure कि I have something as a backup and then I'm switching to something else. तो अगर आप इफ़ यू वर्किंग समवेयर, इफ़ यू डूइंग जॉब, अगर आपको खुद का कुछ स्टार्ट करना है तो डू इट, बिंदास करो, बेशक करो, 100% करो, आज ही करो. मैं तो बोल रहा हूँ स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम टुडे. जिस दिन आपने सोच लिया, लोग मुझे पूछते हैं आप एंकर कब बने, मैं कहता हूँ कि मैंने जब सोचा मुझे एंकरिंग करनी है, मैं तब से एंकर बन गया. सिंपल. आई स्टार्टेड कॉलिंग माई सेल्फ एज एन एंकर. सो इफ यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर एन आर्टिस्ट. अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप फिर भी गिटार आपका पैशन है, तो आप एक आर्टिस्ट हो. यू आर एन आर्टिस्ट फ्रॉम द डे यू थिंक यू आर एन आर्टिस्ट. सो इट्स वेरी सिंपल. द मोमेंट दैट थॉट कम्स इन योर ब्रेन कि मुझे ये करना है, आई थिंक दिस इज व्हाट आई एम लाइकिंग इट, ये मेरा पैशन हो सकता है, ये मेरा करियर हो सकता है, उस पर काम करना शुरू कर दो. एक दिन आएगा जब आपको लगेगा कि अब मैंने इतना तो काम कर लिया है कि मैं इसको फुल टाइम कर सकता हूँ, मैं इसमें कुछ बड़ा कर सकता हूँ, आई कैन ग्रो इन दिस. तब सब कुछ छोड़ दो पीछे, उस पे लग जाओ. Very nice. That's what I believe. How someone will know whether they like anchoring or not, and if they want to get into anchoring slowly, anchoring or entertainer, is there any specific steps you want to mention? Yes. एंकरिंग का लेके कोई कोर्स नहीं है एज सच स्पेसिफिक. देयर इज नो करिकुलम विच इज देयर विद अस टुडे, बट इट्स वेरी मच रिलेटेड टू टू थिंग्स. दो चीज़ मिलाकर आप एक अच्छा एंकर बनते हो. एक है कॉन्फिडेंस और दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल. एंड एंकरिंग इज ऑल अबाउट वन टेक. आप जो बोल दिया वो बोल दिया स्टेज पे, आप रीटेक नहीं कर सकते उस चीज़ को, या उस चीज़ को करेक्ट नहीं कर सकते हो. कमान से तीर निकला तो निकला, वैसा है. सो दिस प्रोफेशन इज दैट एंड इट्स वेरी गेटेबल. लाइक आई टेल यू, जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो मैं इतनी बड़बड़ करता हूँ, इतनी बातें करता हूँ, इतनी यहाँ वहाँ जाता हूँ, बट अदरवाइज आई एम अ वेरी शाय पर्सन. सो ऐसा नहीं है कि एंकर बनने के लिए आपको बहुत ही टॉकेटिव होना ज़रूरी है. एंकर बनने के लिए आपको बिंदास होना पड़ेगा, ऐसे फुल ऑन, नॉट नेसेसरी. You can be a very reserved person, very shy person, but when you're on stage, you are a completely different personality. That's how I am. अगर आप in person, if I'm talking to somebody, I'm little shy, I'm little reserved, मैं शायद नहीं बात करूँगा. But वही चीज़ है, मेरे हाथ में अगर माइक दे दो आप, तो मैं चाचा फुआ फूफा जी फई जी कहाँ मामा जी चाचा जी सबसे बात करवा लूँगा. कोई टेंशन नहीं. I saw that. I agree. Now I will take slight different angle. And now I'll move to the Coco on Wheels, the other outlet. It's basically desert outlet. That's what I know so far. But would you like to tell something about Coco on Wheels, what it is about and how it started? And how you moved into? It's my baby.
कोको ऑन व्हील्स. एंड जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ वेरी राइट एग्जाम्पल कि क्या करना चाहिए. वाई यू शुड डू इट नाउ इफ़ यू थिंक. दिस वॉज पोस्ट कोविड में सबकी हालत ख़राब हो गई थी, तो देयर वाज नो सोर्स ऑफ इनकम. बीइंग एन आर्टिस्ट मेरा तो फुल टाइम काम यही था, एंकरिंग करना. कोई शोज़ नहीं थे, वेडिंग्स नहीं थे, तो भी हमने काफ़ी सारे ऑनलाइन शोज़ किए थे. वी डिड अ लॉट ऑफ ट्रेजर हंट वगैरह कॉर्पोरेट्स के लिए किए थे, बट दैट वाज नॉट सफाइजिंग. तो वी थॉट व्हाट कुड वी डू एल्स. तो मैं और मेरे टू ऑफ माई पार्टनर्स, वी थॉट कि यार कोको इज़ फॉर पीपल हु नो, डेयरी डॉन इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम जहाँ कोल्ड कोको मिलता है, बट अदरवाइज इट्स अ चॉकलेट ड्रिंक जो दूध से बनता है. तो हमने सोचा कि ये बनाना आता है हमें, तो बनाते हैं. बनाना आता है तो बेचना भी आता है, बेचते हैं चलो. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड कोको ऑन व्हील्स. 2021 दिसंबर हमने स्टार्ट किया एक 4-व्हीलर में. मेरे जो पार्टनर है उसकी एक गाड़ी थी. हमने गाड़ी की डिक्की को खोला, उसमें हमने लाइट्स लगाई और सामने एक स्टूल रखा और हमने कोको बेचना चालू किया. एंड उसके साथ वी वर लाइक 3 महीने में वी गॉट सच अ वार्म रिस्पॉन्स with only 4 flavors of cocoa. So then we upgraded to a desert truck in 2022. और 2022 फरवरी में हमने एक डेजर्ट ट्रक बाय किया, उसको हमने मॉडिफाई किया हमारे हिसाब से. एंड वी गॉट 35 न्यू आइटम्स डेजर्ट की, विच हैज़ फ्रूट शॉट्स, ब्राउनीज, चिलर्स, इम्यूनिटी शॉट्स. ये सब हमने खुद क्यूरेट किया मेन्यू बैठ के 1 महीना. We did a lot of R&D and we came up with this desert truck called Coco on Wheels. Then it hit it off and it was a straight hit amongst people. We are right now at Virar, and then we partnered with a couple of other investors to open 2 new outlets in Goregaon, Andheri, Kandivali and Vasai. I am a foodie, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ नई चीज़ खाने को दिख जाती है, मिल जाती है तो खा लेता हूँ. ये भी एक रीज़न है, यू नो, एंकर होने के बेनिफिट्स. आपको हर शादी में नया नया खाना टेस्ट करना मिलता है, तो यू गेट टू हैव लॉट ऑफ फूड. दो नई डिशेस जो ट्रेंड चलता है. वाओ, दिस इज गुड. सो व्हेन यू आर नॉट डूइंग एंकरिंग, यू आर ऑन कोको ऑन व्हील्स, दैट्स व्हाट. यस, एंड दिस इज क्लासिक एग्जांपल, एटलीस्ट फॉर मी, पंखिल, or even for listeners as well. मतलब to everyone out there who's listening, जो भी सुन रहा है, and I was not prepared mentally कि मैं कैसे बोलूँगा, क्या बोलूँगा. Right now also with the conversation that we having since 33 minutes, I don't know how it went, but to all the people who are listening, who will be listening this, I just want to say one thing, boss, have faith in yourself, have faith in the Almighty, whoever you worship. It's gonna be fantastic. हर दिन आप इतने हैप्पीली उठो एंड जियो. इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो, बट जब आप वो करते हो ना, लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट. लाइक एब्सोल्युटली. मैंने कभी भी, देयर वर टाइम्स जब मुझे पता नहीं था कि अगले महीने की मैं रेंट कैसे दूंगा घर का. कोई बड़ा खर्चा आ रहा है. माई गर्लफ्रेंड, उनका बर्थडे था, तो मुझे नहीं पता था मैं यार कैसे गिफ्ट करूँगा, क्या गिफ्ट करूँगा. बट आई हैड फेथ, आई हैड सो मच ऑफ फेथ इन माई सेल्फ एंड द ऑलमाइटी दैट आई गिफ्टेड हर एन iPhone 14 ऑन हर बर्थडे. सो व्हेन आई गॉट मैरिड, तो जब शादी के 6 महीने 8 महीने पहले तक, जेन्युइनली दिल से बोल रहा हूँ, मेरे पास सेविंग्स 19-20 थी. आई वॉन्टेड टू डू अ डेस्टिनेशन वेडिंग. नॉर्मल वेडिंग जितने पैसे थे, बट डेस्टिनेशन वेडिंग फॉर 3 days, हल्दी संगीत जैसे मैं करवाता हूँ लोगों की शादी, मुझे खुद की शादी वैसे करनी थी. कैसे करूँगा पता नहीं था, बट आई हैड फेथ. मुझे पता था कि मैं करूँगा. मैंने सोचा और मैंने वो किया. So I was very, very extremely happy that when I got married, I got married the way I wanted to get married. तो अगर आपको भी कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ करनी है, तो उस पर गिव अप मत करो, उसको बार बार सोचो. हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू इट. और आई चैलेंज यू, अगर वो आपके पास नहीं आएगी चीज़ तो. सुपर. शादियाँ तो होती रहती है, अलग अलग तरीके के इवेंट्स भी होते रहते हैं. हाउ पीपल कैन रीच आउट टू यू, मैन? रियली लाइक टू हैव यू टू रॉक द स्टेज. I'd love to connect with everyone who wishes to connect with me. It would be my honor to get in touch with all of y'all. You could reach out to me at PD on stage. PD stands for Pankhil Dholakia, my initials, PD on stage. That's my Insta ID. And I'm very much active on Instagram. I'm very much active on WhatsApp. You could reach out to me on my phone number also, which is mentioned on Instagram.
एंड व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, बट I would want to connect with as many people as possible who would want to connect, collab. I'm up for a lot of things. And a special mention over here to Divyesh. You're doing a fantastic job. Absolutely killing out there. Because अगर मैं एक example हूँ who's following the passion, तो the person sitting on the other side of this laptop talking to me is also a gentleman who's pursuing his passion and started something new, started something very good what he wanted to. So many congratulations on that to you also, Divyesh. Fantastic. Thank you, Pankil. It was really good connect with you. We all wish you many marriage functions, corporate events, any events. You just keep rocking and make everyone dance, make everyone happy. Thanks, Pankil. This is Divyesh. We are ending episode number 2, No Talkers. You can also find summary, key discussions of this episode on website notalkers.com/2, and also remember to subscribe, review, comment if you really like the show, and also if you do not like, add comment so I can improve. Thanks, listeners. लाइफ तो आगे चलती ही रहनी चाहिए. ए नहीं तो बी नहीं तो सी. कोशिश करती रहनी चाहिए. शायद यही इंस्पिरेशन ये एपिसोड को सुन के आपको मिले. और हाँ, अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि नई स्टोरीज इंस्पायरिंग जब भी आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले.